John Dolittle, M.D., was a proper doctor and knew a whole lot. He lived in a little town called Puddleby on the Marsh. All the people, young and old, knew him well, and whenever he walked down the street in his high hat, everyone would say, "There goes the doctor. He's a clever man." And the dogs and children would all run up and follow behind him, and even the crows that lived in the church tower would caw and nod their heads. The house he lived in on the edge of the town was quite small, but his garden was very large and had a wide lawn and stone seats and weeping willows hanging over. He was very fond of animals and kept many kinds of pets. Besides the goldfish in the pond in his garden, he had rabbits in the pantry, white mice in his piano, a squirrel in his linen closet, and a hedgehog in the cellar. He had a cow with a calf too, and an old lame horse, 25 years of age, and chickens and pigeons and 2 lambs and many other animals. But his favorite pets were Dab-Dab the duck, Jip the dog, Polynesia the parrot, and the owl Toot-Toot. "When you love animals so much, why don't you doctor them?" asked Polynesia one day. "Take care of animals. Be an animal doctor." "I don't treat animals because I am a doctor for people, and there are plenty of animal doctors," said John Dolittle, putting the flower pots outside on the windowsill to get the rain. "Yes, there are plenty," said Polynesia, "but none of them are any good at all. Now listen, doctor, and I'll tell you something. Did you know that animals can talk?" "I knew that parrots can talk," said the doctor. "Oh, we parrots can talk in 2 languages, people's language and bird language," said Polynesia proudly. "If I say, 'Polly wants a cracker,' you understand me, but hear this: Ka-keo-ki, fee-fee." "Good gracious!" cried the doctor. "What does that mean?" "That means, 'Is the porridge hot yet?' in bird language." "Oh my!" said the doctor. "You never talked that way to me before." "What would have been the good?" said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. "You wouldn't have understood me if I had." "Tell me some more," said the doctor, all excited as he rushed over to the dresser drawer and came back with a book and a pencil. "Now, don't go too fast, and I'll write it down. This is interesting. Very interesting. Something quite new. Give me the birds A, B, C first, slowly now." So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. At tea time, when the dog, Jip, came in, the parrot said to the doctor, "See, he's talking to you." "Looks at me as though he was scratching his ear," said the doctor. "But animals don't always speak with their mouths," said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. "They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a noise. Do you see now the way he's twitching up one side of his nose?" "What does that mean?" asked the doctor. "That means, can't you see that it has stopped raining? Clearly he wants you to take him out for a walk." Polynesia answered, "He's asking you a question. Dogs nearly always use their nose for asking questions." After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. Polynesia brought her sick friends, and the doctor began to treat their illnesses. One day, a farmer brought his old plough horse to the doctor. The poor horse was very glad to find a man who could talk in horse language.
You know, doctor, said the horse, that vet over the hill knows nothing at all. He has been treating me for 6 weeks now, for spavins. I am going blind with one eye, but that stupid man over the hill never even looked at my eyes. He kept on giving me big pills. I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. The doctor checked the horse's eyesight and said, "What you need is spectacles." The horse thought for a moment and said, "Why not? There's no reason why horses shouldn't wear glasses, the same as people. What I need is spectacles." Of course, said the doctor. "I'll get you some at once." "I would like a pair like yours," said the horse. "Only green." "They'll keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field." "Certainly," said the doctor. "I'll have them for you next week," said the doctor. "Come in again on Tuesday. Good morning." Then John Dolittle got a fine, big pair of green spectacles, and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the country round Puddleby, and a blind horse was a thing unknown. And so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt. And of course, it was easy for him to cure them. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. And whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields, like harvest mice and water voles, badgers and bats, they came at once to his house on the edge of town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. He wrote horses over the front door, cows over the side door, and sheep on the kitchen door. Each kind of animal had a separate door. Even the mice had a tiny tunnel made for them into the cellar, where they waited patiently in rows for the doctor to come round to them. And so, in a few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, M.D., and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands of the wonderful doctor of Puddleby on the marsh, who could understand their talk and help them in their troubles. In this way, he became famous among the animals all over the world. बंद मत करो, अभी तो हिंदी हमें सुनना है। अरे भाई, हग लॉफ्टिंग द्वारा लिखित ये बहुत प्यारी स्टोरी हम हिंदी में बिना सुने कैसे छोड़ेंगे। तो चलिए, डॉक्टर डुलिटिल लर्न्स अ न्यू लैंग्वेज। डॉक्टर कैसे न्यू लैंग्वेज सीखे है, ये है जॉन डुलिटिल, एमडी डॉक्टर है। ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इन्हें सब कुछ आ जाता था। इनका छोटा सा घर आप देख सकते हैं, पूरा टाउन में इनका सबसे छोटा घर था, और वो भी पुडली ऑन द मार्श, मतलब रोड के बिल्कुल सामने। हाँ, सब पीपल जो है, सब लोग जो है वो बोलते थे, ये पुरानी जहाँ पे भी ये जाते थे। एक्चुअली ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हैं। इनका रहन सहन बहुत सिंपल है। जो कुत्ते हैं, जो बकरियां हैं, जो एनिमल्स है, जो क्रो है, ये इन डॉक्टर को सभी की भाषाएं आ जाती थी। सभी एनिमल्स इनको जैसे सलाम करते हुए दिखते थे। इनका घर बड़े ही छोटा था, पर इनका गार्डन बहुत बड़ा था, बहुत शांत, बहुत सुंदर, अच्छे से मेंटेन किया गया, और वहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस भी थे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि यहाँ पे एनिमल्स, उनको अभी वो
जानवरों के डॉक्टर ही थे, तो उनको जानवर तो बहुत अच्छे लगते हैं। हर प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे थे, भेड़, बकरियाँ, फिश, रैबिट्स। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैबिट क्या कर रहा है, माउस मतलब चूहे राजा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वारल आंटी क्या कर रही है, जो हेज हॉग है वो भी क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। इवन काऊ जो है, काऊ अपने काल्ब को लेके फ्रीली यहाँ पे दूध पिला सकती है। एक छोटा सा बूढ़ा सा ओल्ड सा घोड़ा है, वो भी है। चिकन्स है, पिगन्स है, तो 2 लैम्स भी है। आप देख सकते हैं सारे के सारे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं, और वो बहुत प्यार से यहाँ पे। अरे भाई, डक को क्यों छोड़ दे, डक भी तो है। वाह, छोटा सा डॉग भी है। ओ बाप रे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो आउल भी है, यहाँ पे पैरट भी है, सभी एनिमल है। और ये लैंग्वेज पता है किसने सिखाई? ये जो भैया यहाँ पे बैठे ना, पैरेट, हाँ, इन्होंने सिखाई है। पोलिनेशिया इसका नाम है। तो एक दिन क्या हो गया, ये जो पैरट है ये डॉक्टर को बोलता है कि आप अगर एनिमल्स की भाषा जल्दी सीख जाओगे ना, तो आप एनिमल्स के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो जॉन डूलिटिल बोलते हैं तुम सिखाओ, तुम बोलो, बताओ कैसे। तो उन्होंने विंडो की यहाँ पे जब फ्लावर पॉट रख दिया, हाँ, तब रेन आनी शुरू हो गई। फिर बाद में बातें करना शुरू हो गया, बहुत सारी बातें वो कर रहा था। और जब वो पैरट बीच बीच में बातें कर रहा था, तब वो डॉक्टर जो है वो सुन रहे थे। दूसरा कुछ कर भी तो नहीं सकते, बाहर बारिश चालू थी तो वो कहाँ घूमने जा सकते, एनिमल्स को देखने भी नहीं जा सकते, दूसरे एनिमल यहाँ पे एज अ पेशेंट आ भी नहीं सकते। अब इसकी बकवास सुनना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो इम्पोर्टेंट बोलेगा। और पैरट जो है जब भी मुंह खोलता है तो बहुत सारी बातें बताता है। पता है क्या डॉक्टर साहब, वो बता रहा था बर्ड की लैंग्वेज, एनिमल की लैंग्वेज और इंसानों की लैंग्वेज होती है। आप लोगों को खाली इंसानों की लैंग्वेज दिखाई देती है, हम जानवरों की दिखाई नहीं देती। लेकिन जानवरों की भाषा अगर आप सीख जाओगे तो आपकी डॉक्टरी जो है ये आपको काम में आ जाएगी। जैसे कि कौवा काव काव करता है, कोयल जो कू कू करती है, इसमें भाषा छुपी होती है। हर जानवर की आवाज़ में कुछ ना कुछ, वो जो आवाज़ निकालता है उसमें कुछ बातें होती है। अच्छा, सारी की सारी भाषा मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे वो पोपट जो है वो इन्हें बता रहा था। डॉक्टर साहब बड़े ही इंटरेस्ट लेके सब बातें सुन रहे थे। अच्छा, तुम्हें अगर उनकी सबकी भाषा आती है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? तो उस पैरट ने क्या किया, मुझे जितना आता है मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा, आप जितना याद कर सकते उतना करो, बताओ और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताओ। तभी उन्होंने क्या किया, एक नोटबुक लेके आए, पेन लेके आए, पेंसिल लेके आए, और ये जब वो बोल रही थी सॉरी, ये सारी चीज़ें जो है ये अब लिखना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट और बढ़ता गया भाई, एक एक पोल खोल रहा था वो, ABCD पूरी की पूरी एनिमल्स की पढ़ा रहा था, बता रहा था कि एनिमल्स की भाषा कैसे होती, को डिफरेंट एनिमल डिफरेंट भाषा में कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, सब बातें वो बता रहे थे एक दूसरे को। और ये पैरट जो है ना, जैसे हम इंसानों का हम उन्हें सिखाते हैं, वैसे ही ये दूसरों का इमिटेट करके बताते हैं। तो किचन टेबल के यहाँ पे आ जाने के बाद अब की टेबल पे उसे रख दिया है, और डॉक्टर साहब मस्त चेयर पे बैठ के नोटबुक पे लिख रहे हैं। यहाँ पे डॉग जो है ये भी आके यहाँ पे खड़ा है। तो जो पैरट है ना, अब ये जो डॉग आपके पास डॉक्टर साहब आके खड़ा है, ये आपसे कुछ बोल रहा है। ये जो कान खुजलाना आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर साहब, कुत्ता अपनी दुम हिला के नहीं बात करता है। जब वो अपने कान खुजलाता है, बॉडी को खुजलाता है अपने चेहरे, इसका मतलब वो आपसे कुछ बातें करना चाहता है। तो वो बताती रहती है कि कोई भी कुत्ता जो है, ये जैसे ही अपनी कुछ कुछ चीज़ें होती हर इसके लिए उसकी एक्टिंग रहती है। जैसे दुम हिला दी अपनी, तो मतलब कुछ मांग रही है। जैसे कि अपने पॉज को चाट रही है, तो कुछ और है। अपने नोज से भी बातें करती है, मतलब वो कुछ बताना चाहती है। अच्छा, पर मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। तब तक अब क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना,
आप सुनिए, बीच बीच में मत बोलिए। और ऐसे ये अब आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो कुत्ते होते हैं ना, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो अपनी नोज़ को वो टच करते हैं। ऐसे ये पैरेट बता रहा था। डॉक्टर साहब जो है, इन्हें एनिमल्स की लैंग्वेज सीखने में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि तुम बोलते रहो, ऐसे वो पैरेट को बोलते हैं। और पैरेट भी है एक बहुत पढ़े लिखे इंसान की तरह सब बता रहा था। तो अब देखिए, जब डॉक्टर साहब को अब बहुत सारी भाषाएं आ गई थी, डॉक्टर साहब अब अच्छे से जानवरों की भाषा समझ सकते थे। तभी एक किसान अपना घोड़ा लेके आया था। बेचारा घोड़ा जो है ये बहुत ही दुखी था, क्योंकि किसी को इसकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी। जिसको पहले जिस ये किसान जो है, ये घोड़े को जब थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो जिस डॉक्टर के पास गया था वो डॉक्टर ने इसे गलत दवाई दे दी थी, और जो दवाई का असर बहुत गंदा हो रहा था। दिन ब दिन इसकी आई साइड जो थी वो कम 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 हो जा रही थी। तो घोड़े की जब भाषा इनको समझ में आ रही थी, डॉक्टर साहब ये सब सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम ब्लाइंड होने वाले हो, मतलब तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखने में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड है, तुमको चश्मे की ज़रूरत हो सकती है। तब घोड़ा बता रहा था कि मुझे वो जो बड़ी बड़ी टैबलेट्स जो दिया करता था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो देने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे आँखों में प्रॉब्लम था। तब डॉक्टर ने आके चेक किया। चेक करने के बाद उनको लगा कि तुम्हारी सच में तुम्हारी जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई है, तुम्हें चश्मे की ज़रूरत है। तो घोड़ा बोलता है कि चश्मा, अच्छा ठीक है, आप चश्मा बनाओगे तो मेरे लिए प्लीज़ ग्रीन कलर का चश्मा बना लेना, क्योंकि ग्रीन कलर से सन जो है मेरे ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, उसी के कारण मेरी आंखें ख़राब हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन चश्मा बना दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन एक काम करो, तुम्हें यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा चश्मा लेने के लिए, मुझे मिलने के लिए ग्रीन कलर का चाहिए ना तुमको। तो घोड़ा बोलता है हाँ भाई, ग्रीन कलर का ही चाहिए मेरे आँखों के लिए, और जब मैं घास फूस में काम करूँगा, खाऊँगा, चरूँगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, लेकिन इसके लिए ना दो वीक्स लगने वाले हैं, तो तुम ट्यूसडे के दिन आ जाना मॉर्निंग में। जब जॉन डूलिटिल है, इन्होंने उसे ग्रीन कलर का चश्मा पहना दिया, आप देख सकते पहना रहे हैं, और वो अच्छा खासा बन गया, उसे अच्छे से दिखने लग गया था, जो एक आँख से कम दिखाई दे रहा था वैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो भेड़ बकरियाँ है, गाय है, सभी को यहाँ पे चश्मे लग गए हैं। बहुत अच्छी बातें इन लोगों ने सीख ली है डॉक्टर ने। काश दुनिया के सारे डॉक्टर ये सीख जाते थे, तो बेचारे ब्लाइंड एनिमल जो है, जो बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी भाषा अगर सच में ये डॉक्टर लोग सीख जाए थे तो बहुत अच्छा होता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉन साहब जो है, इनके साथ मन की सारे के सारे एनिमल्स इसके साथ बातें करते हैं, अपना जो दुख है, दर्द है, ये सब बांट रहे हैं, बता रहे हैं। और जॉन मतलब जो डॉक्टर साहब है, इनके दर्द के अकॉर्डिंग इनको टैबलेट्स देते हैं, और एनिमल्स को अभी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि पहले बहुत बार उनके ऊपर बड़े बड़े रिएक्शंस हो जाते थे। कभी कभी कोई गलती से कोई और ही दवाई उन्हें दी जाती थी, और वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते थे। लेकिन अब नहीं, अभी सही सही इलाज हो रहा था, कोई भी एनिमल बीमार नहीं पड़ रहा था। इसीलिए डॉक्टर साहब जब भी रास्ते से जाते थे तो ये सारे के सारे एनिमल उन्हें ग्रेट सैल्यूट देते थे, क्योंकि दुनिया का ये पहला डॉक्टर था जॉन डूलिटिल, जो इंसानों की भाषा तो जानता था, ऐसा डॉक्टर था कि वो एनिमल्स की भी भाषा जानता था। और ये बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। एक्चुअली हग लॉफ्टिंग जो है, ये ऐसे ही चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो उनका दवाखाना है ना, ये अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग डोर्स भी रख दिए, जैसे हॉर्सेस के लिए बड़ा, फिर बीच में से इधर काऊ के लिए,
ऊपर बर्ड्स के लिए, हर एनिमल्स के लिए अलग 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 साइड से इन्होंने क्या कर दिया। एक ही देखिए यहाँ पे भी हम कोरोना के टाइम में भी फॉलो नहीं कर रहे। ये देखो, हाँ, हॉर्सेस के दरवाजे से हॉर्सेस ही जाएगा, काऊ के यहाँ से काऊ, शिप के यहाँ से शिप ही जाएगी। कितना अच्छा। और यहाँ पे देखिए चूहों के लिए तो छोटा सा बिल जो है वो बना के रखा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब बहुत ही क्रिएटिव है, उन्होंने हर एनिमल के लिए सोच समझ के बहुत अच्छे से ये किया है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। दूर दूर से एनिमल आते थे और ये जो डॉक्टर है ये एनिमल्स के गॉड माना जाता है, माना जाता है। मतलब देखिए ना, आप देखिए कितना दूर दूर से लोग इनको मिलने के लिए आ रहे हैं। आप कभी सोच सकते हैं क्या, ये जो बर्ड्स है ये दूसरे कंट्रीज़ में से, अपने अलग अलग कंट्रीज़ में से जाते हैं या वाह, और ये बातें भी करते रहते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है ना भाई वो बहुत टैलेंटेड है, उसको हमारी भाषा आता है, और हम कभी भी दुख दर्द में है ना तो ये हमारे लिए भगवान है। ये फेमस हो गया, पूरा पूरा वर्ल्ड में फेमस है, जॉन डूलिटिल करके। अब ये वीडियो मैंने पूरा बना दिया है, आपने देख भी लिया है, तो भाई लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए मेरे सारे वीडियोज़ को।